Bismillahirrahmanirrahim. Sure, okay. So today we are going to cover concepts which are related to subnetting and supernetting. In the previous week, we covered concepts which were related to the network address translation, as well as uh, VPNs, hybrid networks. Um, Plus, there were certain things related to the classes which we can make in the IP schemes, various blocks, how they can be defined, then the IP addresses within each block. So such like things were covered in detail. Quite a bit of things were there. So I hope those things are clear. There is no confusion or no question from there. Right? Everybody has gone through that. So if everybody has gone through that, so before we proceed for the new topic, let's have a small quiz from the previous section. You can open one piece of paper, write down your name. Let's see what you do. Write your name and ID. So here is the quiz. First part is हमने से क्लास में भी किया था how there are 16,384 blocks in class B. Number one. Question two is what is the first and last block in class B? And third is if an address is given, what would be its network address, block range, and default mask? So very simple three questions. पेपर चेक पार्शली हो गए, कंप्लीट इंशाल्लाह इस वीक में हो जाएंगे. पोजीशन ठीक है, आपके पेपर ठीक नहीं हुआ क्या? आसान पेपर, पोजीशन ठीक है, पोजीशन अच्छी है.
It's quite simple. Things are how there are these many blocks because we know that in case of class B, we have the first two octets as the block number. Class B starts from 1 to 8 and goes till 191. Okay, so we have 128.0.0.0 as the first block. This is the fixed block ID. It will go from this first IP to 128.0.255.255. Again, this will be fixed. So this is the first block. The last block in is goes till 191.255.0.0 से लेके 191.255 again this remains fixed dot 255.255. So this makes these many number of blocks. So if you subtract from 190 128 from 191, this gives you an answer of 63, and this number is varying from 0 to 255. It means 256. So you need to multiply, you add 1 for the range, so it is 64 times 256. So the answer is 16384. These many blocks are there in class B. Second is already answered. So now if this address is there with you, we know that the first two octets are the network ID or the block ID. So the default mask for this is 255.255.0.0 because you have to retain the first two octets as it is. So if you multiply
or do an AND operation. So all the ones, if they multiply with the first two octets, that means 255. So you'll get the answer of 132.6.0.0. So this is the block ID, and the number of IP addresses would be starting from 0.0 to 255.255. That would be the range of IP addresses. So this way, this whole thing is done. Okay. So this is as far as the solution is concerned. Let's move towards the subnetting and supernetting. So in the in the previous sections, we have already discussed the problems which are associated with the classful addressing. As we saw that the IP addresses are reducing. I mean, by reducing, we mean that the people who want to use the IP addresses, they are getting more and more, and the numbers are fixed because we are having the IP addresses as 2 power 32, around 4 billion. So users are much more than 4 billion. And secondly, whatever addresses are available, unke andar bhi there are number of addresses which cannot be used, or they have been reserved for some purposes. So accordingly, there should be some procedures to make or to optimize the available addresses. For that, few have been discussed, like NAT was one of the popular scheme which increases the number of IP addresses which can be used for the public addressing or to go onto the internet. And the other word which is again very popularly used is the subnetting and supernetting. In subnetting, we can do certain things which will improve upon the utilization of IP addresses. So we'll see that how it is possible. Okay, so as we saw earlier that in each class, in fact, we are able to use 3 classes generally. The other 2 classes are reserved or for some other purposes. Out of the 3 classes which are used by the people, the first 2 blocks or the first 2 classes are they contain very huge number of IP addresses. Like in case of class A, one block contains 16.7 million hosts, because apart from the first octet, rest of the 3 octets they can vary. So you can vary 2 power 24 various combinations are possible. So this number is around 16.7 million users which can be accommodated in one network. In class B, the first 2 octets are fixed and the other 2 can be utilized. So again you have a power of 16 over 2. So this gives you a number around 65,000 hosts in one network which is there in the class B. Again, it's a uh, huge collection of IP addresses which are there with an organization or with a person who gets hold of a class B network. On the other hand, class C network is quite small, because in class C again there are 4 octets. Out of the 4 octets, we fix the first 3 octets as the block ID, and only the last block or last octet can vary, which is 8 bits. So you have 2 power 8 available in your hand. So this gives you the answer of 256 users which are there in a class C network. So class C network is quite small for a mid-sized organization or an organization which require more number of IP addresses. So what we can do something with class C and another thing with class A and B. Generally with classes which are with the larger number of host IDs, here we do the subnetting operations. We make smaller networks out of a bigger network. Whereas in class C, we can combine smaller networks to form a larger network, and we call it a super network. And we'll see that how it is done. Okay. So, for example, if we have been assigned an IP network address as 152.77.0.0, so this is in fact is showing me a complete block which contains 65,000 IPs, because this is the block ID, the first 2 octets, and this first ID in fact is the IP address of the network. So we have 2 power 16 host IPs available within this network. The default mask for this type of network as a class B network is 255.255.0.0, right? Remember that we are talking of class full addressing scheme. We'll come on to the class less, so we'll see that what can be in fact inferred from whatever we learn from here. So in fact,
what is the problem is that all the devices and host on the same physical segment must have the same network ID. हमारे पास जो भी एक क्लाउड बनता है, जितनी भी हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे राउटर है, दुनिया भर में जितनी भी राउटिंग हो रही है, इट वुड बी राउटेड टुवर्ड्स अ राउटर विच वुड बी हैविंग some information about our network address 152.77.0.0. It won't be knowing any subnetwork, or it won't be knowing about anything else. But जो प्रोसीजर गेटवेज का या राउटर्स का है वो ये है कि whatever address they get, whatever address they investigate, they analyze in a packet, they go and check what would be the network address for that destination. In fact, IP address in the packet would be something like this: 152.77.63.64. Right? Out of this IP address, the router job is to route it to the network, to the right network. For that, it will do the AND operation with the default mask, and of course we'll see shortly there are something else as well, but the masking is done by the routers to check the network address. So after the masking, if it's a classful addressing scheme, it will get to the network address of 152.77.0.0. So it doesn't know about this device. उसे नहीं पता कि क्या चीज़ है, उसे ये पता है कि ये नेटवर्क किधर है, ये किस राउटर के ऊपर हो सकता है, और दुनिया में जितने राउटर्स लगे हुए हैं, they will try to make this packet approach to this network address. So this network address would be at some port of a router, which would be the final router to which this network would be connected. And now that router then later on will do something to reach to this device, which is 152.77.60.64. इसका मतलब ये हुआ कि to make the routing possible, or the algorithms which are devised for the routing, it is important that all the devices or hosts which are in fact in a particular network should be on the same physical segment. Physical segment means कि ये एक physical segment है. One port of a router is a physical segment. So all the devices should be here to make it possible for all the routing algorithms to work. Otherwise routing will not work. Routing and forwarding के जो basic principles हैं वो उस वक्त काम करते हैं जब आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हर physical device की जो IP एड्रेस है उसका network एड्रेस एक ही होना चाहिए. Right? We'll see that and we'll further investigate this. So one network ID supports only one physical segment. लेकिन आप जब एक फिजिकल सेगमेंट की आप बात करते हैं तो वन फिजिकल सेगमेंट जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक विच इज नॉट विजिबल टू अस. बहुत सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो एक नेटवर्क के अंदर चल रही होती है, अदर देन दी एक्चुअल डाटा पैकेट्स विच आर रीचिंग टू अ पर्टिकुलर होस्ट आईडी और अ डिवाइस. सो एंड सेकेंडली देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स लाइक जिस तरह हमने कहा कि जी ईथरनेट के ऊपर एक मैक्सिमम फिजिकल सेगमेंट साइज है, उस पर खास नंबर ऑफ यूजर्स ही अटैच हो सकते हैं, उससे ज़्यादा यूजर्स आप अटैच नहीं कर सकते. स्टैंडर्ड जो है कुछ वो डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी यूजर्स कैन बी देयर ऑन अ पर्टिकुलर फिजिकल सेगमेंट. देन वेंडर्स मेक डिफरेंट डिवाइसेस, they make these specifications as per their own requirement. They can't handle a huge traffic on a single device, physical device or a physical segment. Apart from the physical specifications, the performance of the network will deteriorate if you'll add more devices on a single physical segment. Then there is a requirement, if you purchase if an organization purchases a huge number of IP addresses, then it must be geographically scattered. It may not be possible that if a device or an organization is purchasing 65,000 IPs, then it's only stationed or placed only at one place. Like in Islamabad, it's not required to have these many number of IP addresses. अगर एक organization 65K IP addresses लेगी तो डेफिनेटली वो दुनिया भर में फैली हुई होगी. उसका ऑफिस कराची में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, वाशिंगटन में भी होगा, बर्लिन में भी होगा, right? So they must be a multinational organization which would be requiring this much huge number of IP addresses. तो geographic locations different है और उनको अपने IP address देना है, तो हर एक के लिए अलग अलग ब्लॉक तो नहीं लेगा, वो एक ही ब्लॉक लेगा. तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि वो वही सेम ब्लॉक या वही सेम जो आपके पास आईपी एड्रेसेस की स्कीम है वो मुख्तलिफ ज्योग्राफिक लोकेशंस पे भी यूटिलाइज की जा सके. बट देयर आर सम हिंड्रेंसेस. हमने बात की कि नेटवर्क आईपी फिर भी सेम होना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टोपोलॉजीज. लाइक
a network which is based on Ethernet, that is a topology which is one type of, and if it is required to be connected with a token ring, then the token ring is in fact a different topology. So the traffic which is feasible or which is practical for Ethernet cannot travel onto another type of network. So again, there has to be some intermediate arrangement which is required to make it possible to connect different topologies, different types of networks, different devices, and as well as to control the network, not extending it beyond some manageable numbers. Like अगर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अगर से 100 डिवाइसेस को 500 डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, अगर आप वहाँ पे 5 लाख चीज़ें प्लेस कर देंगे तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके वो एरर्स को ट्रबल शूट कर सके. So accordingly, the solution is the placement of routers for this purpose. So router is in fact is something which can be done. और जो डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास किसी भी एक फिजिकल सेगमेंट की, वो ये है कि किसी भी एक राउटर के एक फिजिकल पोर्ट के ऊपर जो डिवाइसेस प्लेस की जाती हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड वन फिजिकल सेगमेंट. और एक राउटर जो है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है. ऑन वन पोर्ट इट मे कनेक्ट एन ईथरनेट, ऑन द सेकंड पोर्ट इट मे कनेक्ट अ टोकन रिंग, राइट. सो अकॉर्डिंगली ये राउटर की जो एक फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है वो पॉसिबल करती हैं कि हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को आपस में कनेक्ट करके एक लार्जर नेटवर्क बना सकते हैं. सो इनफैक्ट देयर इज अ वन गेटवे और वन लार्जर one network or one router which would be connecting the entire organization, and that organization in fact is now configuring its architecture based on updating the routing table here on this gateway router, and this router knows, okay, this router is in fact in Karachi, another router is at Islamabad, another router is at Washington. So accordingly this router can further direct the traffic which is coming from the globe towards this organization, and now it can be further guided towards the correct destination. And for that matter we go for the subnetting. Subnetworks can be made which can connect various networks within a bigger network, right? For that we'll see कि वो कैसे possible है. So like for example जैसे मैंने बात की कि जी this is the block which is given to you, so it means you have been given 65,000 host IDs. So there is a requirement of many physical segments to make it possible. जिसने भी ये लिया है उसको मुख्तलिफ जगहों पे इसको बांटना है ताकि ये effectively यूटिलाइज हो सके. और वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो ग्लोबल होगी और मुख्तलिफ जगहों पे होगी. Accordingly there has to be a number of physical segments. For that purpose we go for the subnets and we define the subnet masks and subnet IDs. We see that कि how it is possible और ये किस तरीके से करते हैं. So जैसे हमने बात की कि जी subnet is a portion or subdivision of the IP addresses that are associated with an assigned network ID. So we may have various subnets, multiple subnets, but all of these subnets will be part of a network, and there would be some central point which would be knowing how to make it possible for a packet to reach to this network. And further now that network internal configuration is known to a router which will now be doing it accordingly कि how to make it possible कि this packet जो मुझे इधर मिला है it should go to this device or via this device to this device or maybe another link with this device, so that accordingly it can be reaching to a particular station for which it is destined. So we'll see that shortly. So range of IP addresses, they are included in a subnet which are determined by the subnet mask. So जैसे मैंने बात की थी कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जी एक नेटवर्क आईडी और उसके डिफॉल्ट मास्क से हम ये पता चला सकते हैं कि कितने आईपी एड्रेसेस हैं इस नेटवर्क के ऊपर. बिल्कुल उसी तरीके से सबनेट के मास्क की मदद से हम एक सबनेट की आईडीज को निकाल सकते हैं कि कितने आईडीज यहाँ पर हैं. और एक आपने बेसिकली इसमें एक लेवल हायरार्की का और डाल दिया कि अगर आपके पास पहले डायरेक्ट फोन नंबर था तो अब आपके पास उसकी एक्सटेंशन भी शामिल हो गई है, राइट. सो so in fact what we see that there is a requirement of more physical segments, so that is possible by defining more routers within an organization. और उसके लिए फिर हमें सबनेट्स बनाने पड़ेंगे और सबनेट्स के अंदर हमें आईपी एड्रेसेस को ड्रॉप करना पड़ेगा. तो एक आईपी एड्रेस अगर आपके पास 152.77.3.2 है तो इसका एक तो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा जो कि 152.77.0.0 होगा, और मे भी इसका उसके बाद एक
सब नेटवर्क एड्रेस होगा जो कि 152.77.1.0 है फॉर एग्जाम्पल। और ये बेसिकली जो एक डिवाइस है ये इस नेटवर्क के अंदर होगी और उस नेटवर्क में इस सब नेटवर्क पे होगी। So there is another level of hierarchy which has to be included here, which we'll see. So there are two levels of hierarchy in fact. So आपके पास ये एक router है which knows which is known by the rest of the internet के जो भी पैकेट्स इस नेटवर्क के लिए आने हैं वो इस राउटर पे आने 141.14.0.0। तो चाहे ये डिवाइस हो, पैकेट में तो ये एड्रेस लिखा होगा या ये एड्रेस लिखा होगा या ये एड्रेस लिखा होगा, लेकिन दुनिया में जितने राउटर्स इससे पहले इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे उस पैकेट से देयर आर मे बी 10,000 राउटर्स इन बिटवीन जो कि इस राउटर तक के आने से पहले बीच में इन्वॉल्व होंगे। तो उनके जो राउटिंग टेबल्स होंगे दे वुड बी जस्ट नोइंग अबाउट दिस नेटवर्क एड्रेस के इसके लिए मैंने किस राउटर पे इस पैकेट को थ्रो करना है, किस नेक्स्ट राउटर के ऊपर इसको जाना चाहिए, और अल्टीमेटली वो पैकेट जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, चाहे वो इस डिवाइस के लिए हो, चाहे इस डिवाइस के लिए हो, चाहे इस डिवाइस के लिए हो। The job of all the routers is just to find out what is the network address, right? So अब अगर ये एक क्लास बी एड्रेस है और 65,000 आईपी इसके पास अवेलेबल है तो वो एक नेटवर्क के ऊपर नहीं लग सकते या एक फिजिकल सेगमेंट पे नहीं लग सकते बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस जो हमने डिस्कस किए। अकॉर्डिंगली सोल्यूशन इज सबनेटिंग, फर्दर डिवीजन ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। Rest of network or rest of internet is not aware of many physical subnets which are being made by that organization and they just think it as a single network. So accordingly इसका ऊपर mention भी किया हुआ है कि organization with IP address 141.14.0.0 has limited to two level hierarchy. Organization has one network with many hosts. It's a class B address and this would be the default mask for this class B network. If this is clear, so what is done over here in fact this organization can make 4 different subnets. This is subnet number 1, this is subnet number 2, this is the number 3 and this is number 4. So rest of the internet knows this site ID 141.14.0.0 but this router knows okay I have further 4 subnet IDs. This is my subnet ID number 1, this is my subnet ID number 2, Shabazz, this is subnet ID number 3 and this is 4. So accordingly जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दुनिया है उसको इन चारों का नहीं पता लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है which is through their own network administrators and people who are working in that organization. दोबारा बोलो क्या कौन सा लास्ट वाला? इसका आईपी आपको कैसे पता होगा? इसका आईपी आपको नहीं पता होगा, आपको इनफैक्ट जो है वो एज्यूम हमने कहा जी हमने गूगल को अप्रोच करना है, गूगल का आईपी एड्रेस आपको डीएनएस दे देगा कि जी इसका आईपी एड्रेस है। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं वो बेसिकली इसी मकसद के लिए होते हैं कि फिर इंग्लिश नेम के अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस परमानेंट भी हो सकते हैं और डायनामिकली भी असाइन किए जा सकते हैं। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपको एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, तो वो डायनामिकली आप जैसे ही प्लग इन होते हैं आपको मिल जाता है, जब आप डीप्लग होते हैं तो वो दोबारा फ्री हो जाता है, किसी और को मिल जाता है। इनफैक्ट आपके सिस्टम भी आपको पता नहीं चलता कि आपको एक डायनामिकली जब एक आईपी मिलता है तो कुछ देर के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, आपको एक टाइम के लिए मिलता है और फिर आपको नया आईपी मिल जाता है, ठीक है, या सेम कंटिन्यू हो जाता है। वो डिपेंड करता है प्रायोरिटीज आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या रखी हुई, लेकिन एक आईपी एड्रेस हर एक के पास होता है और डीएनएस में वो चीज रिकॉर्ड हो रही होती है साथ साथ। और दुनिया भर में जो डीएनएस का एक सिस्टम चल रहा है वो बेसिकली हायरार्किकल लेवल पे इस तरह से चल रहा है कि आप जब एक चीज को एड्रेस करते हैं तो आपके पास आपका सिस्टम डीएनएस लोकल डीएनएस को अप्रोच करता है और आपको उसका आईपी दे देता है कि जी आप जिसको अप्रोच करना चाह रहे हैं उसका आईपी ये है, तो आप पैकेट में वो आईपी लगा देते हैं। जैसे ही आप ये मेल भेजेंगे तो आपके पैकेट में एक आईपी एड्रेस लग जाएगा डीएनएस के थ्रू। अब दुनिया में जितने राउटर्स हैं उन्होंने उस पैकेट को करेक्ट राउटर पे फॉरवर्ड करना है जो कि ये जानता है कि ये गूगल का सर्वर इस वक्त किधर है, क्योंकि आईपी तो आपने लगा दिया ना। से आपको पता चला डीएनएस ने कहा जी कि ये आईपी है जिसपे आपने अपने पैकेट को फॉरवर्ड करना, दिस इज योर डेस्टिनेशन। सो नाउ दिस इज योर डेस्टिनेशन आईपी। whenever this packet will flow out of the network, it will go from this router to the next router. That router will be having a table in which it will be checking the IP. ये IP चेक करेगा
और उसके अगेंस्ट वहां पे या तो ये सिस्टम उसके किसी एक पोर्ट के ऊपर होगा, तो यहाँ पे उसका फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ होगा, या लिखा होगा जी कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, बल्कि इसके लिए मुझे अब नेक्स्ट डिफॉल्ट राउटर इधर पड़ा है उस पर इसको फेंकना है, तो उसका फिजिकल एड्रेस होगा तो वो वहां पे फेंक देगा, ये अगले पे फेंक देगा, वो अगले पे फेंक देगा, और अल्टीमेटली ये उस राउटर पे पहुंचेगा जिसकी एक पोर्ट के ऊपर ये सिस्टम जिंदा है। ठीक है, और यहाँ पे इसके राउटिंग टेबल में मेंशन्ड है कि इस आईपी के अगेंस्ट ये फिजिकल एड्रेस है, तो इस पैकेट को आप इधर फेंक दें। मैंने आपसे कहा था ना कि हर पैकेट जब फ्लो करता है तो हर हॉप के ऊपर उसमें उसका फिजिकल एड्रेस चेंज हो रहा होता है, आईपी सेम रहता है, फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ से सिस्टम से पैकेट निकलेगा, इस हॉप पे पहुंचेगा, तो यहाँ से जब ये नेक्स्ट हॉप के लिए जाएगा तो फिजिकल एड्रेस सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी चेंज हो चुका होगा। सोर्स इसका अपना होगा, डेस्टिनेशन इसका होगा। ये फिर आईपी चेक करेगा, फिर पैकेट को चेंज करेगा, बाहर फेंकते हुए सोर्स में अपना आउटगोइंग लगाएगा और डेस्टिनेशन में इस राउटर का लगाएगा। अल्टीमेटली इट विल रीच टू अ राउटर which would be having the table जिसमें ये आईपी एड्रेस जो है इसके अगेंस्ट एक फिजिकल एड्रेस मेंशन होगा, राउटर नहीं बल्कि उस सिस्टम का मेंशन होगा। अकॉर्डिंगली ये आप उस फिजिकल एड्रेस पे या स्टेशन पे पहुंच जाएगा। जब वहां पहुंचेगा तो उसके पास इसके अंदर ना सिर्फ डेस्टिनेशन का एड्रेस तो वो चेक करेगा और सोर्स का एड्रेस लग के आया होगा, तो उसको पता चल जाएगा मैंने अब जवाब किसको देना है। अकॉर्डिंगली वो जवाब जब वापस भेजेगा तो मे बी सेम राउटर्स और डिफरेंट राउटर्स के थ्रू वो उस डिवाइस पे वापस पहुंच जाएगा, राइट। सो ये इस तरीके से चीजें ऐड होती है। इसलिए क्योंकि इस बाकी दुनिया को आप सारे बाकी इंटरनल आर्किटेक्चर का नहीं बता रहे ना, वो जो इंटरनल सबनेटिंग है वो तो आपने की हुई है, ठीक है, दैट इज सिक्योर प्राइवेट। आप नहीं चाहते कि जी मेरा ये जो डिपार्टमेंट है से आप समझिए मेरा फाइनेंस का सेक्शन है और ये मेरा जो है वो एचआर का सेक्शन है। अब दुनिया में जो बाकी लोग बैठे हैं या जो इन्वॉल्व है लोग, यहाँ जो पैकेट आता है आप चाहते हैं जी मेरा ये खास पैकेट था, इसको फाइनेंस को मैंने फॉरवर्ड करना है। तो इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप चाहते हैं कि जी यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको इस तरह के पैकेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो दिस इज योर इंटरनल डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। आप बाहर के लोगों से भी अपने पैकेट्स को सेव कर रहे हैं और इंटरनल भी अपने काम को कंट्रोल कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, और दिस इज योर जॉब। सो बाकी दुनिया को ऐसे गर्ज नहीं है कि ये क्या चीज है, ये आपको गर्ज है, आपने अपने आईपी एड्रेसेस को मैनेज करना है। उनके लिए ये अगर आप ये करेंगे कि आप सब नेट के एड्रेस भी बाकी लोगों को दे देंगे तो उनके जो ट्रैफिक टेबल्स हैं वो बहुत ह्यूज हो जाएंगे, ठीक है, उसके लिए मुश्किल है। देखो आसानी ना, आपने एक आपने अगर खत भेजना है तो आप खत पे लिखते हैं जी कि इस खत को नाम लिखते हैं, बंदे का नाम लिखते हैं, लेकिन साहब लिख देते हैं जी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में चला जाए, बल्कि आप ये भी नहीं लिखते, आप लिखते हैं जी कि अब्बासी यूनिवर्सिटी में आ जाए। अब जब रिसेप्शन पे वो आ जाता है तो यहाँ पे लोगों को पता है कि यार ये जो बंदा है ये मेरे 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से फलां डिपार्टमेंट में 20 सब डिपार्टमेंट है, 5 उनके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप पोस्ट ऑफिस वाले को तो इतना काफी है कि यार अब्बासी यूनिवर्सिटी पहुंचा दें हम इस पैकेट। अगर उसको आप ये कहेंगे जी कि अब्बासी यूनिवर्सिटी में आप अब जाएं फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, फर्दर जाएं वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग में, और वहाँ पे फलां ऑफिस में एक नंबर 108 के ऊपर बंदा बैठता है, उसको जाके डिलीवर करें, तो आप देखिए उसका काम कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आप ये भी नहीं चाहते कि मेरी इंटरनल डायमेंशंस का उसको पता चले कि मैंने क्या क्या डिपार्टमेंट तोड़े हुए अपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अकॉर्डिंगली आप सिर्फ इतना बता दें तो उसके लिए काफी है कि जी करेक्ट रिसेप्शन पे पहुंच जाए। नाउ यू हैव द इंटरनल डायनामिक्स अवेलेबल, दे कैन हैंडल इट अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे इसको मैंने आगे डायरेक्ट करना, ठीक है, ताकि बाकी दुनिया भी लेस कॉम्प्लेक्स हो और आपका भी काम बहुत सारी चीजों में आसान हो जाए। दैट इज द रीजन फॉर ऑल दिस स्टफ। इसलिए नेटवर्क आईडी या साइट आईडी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बगैर बाकी टेबल्स जो है वो ठीक नहीं होंगे। हम जब आएंगे अभी राउटिंग और फॉरवर्डिंग के ऊपर तो वहां देखेंगे इसका फायदा क्या है, फर्दर भी देखेंगे, बहरहाल ये मोटा मोटा जवाब इसका ही है। तो इनफैक्ट हमने क्या किया कि वी हैव अदर देन द ब्लॉक आईडी, लाइक ये ब्लॉक आईडी थी, हमने होस्ट आईडी के अंदर से कुछ पोर्शन चोरी कर लिया फॉर मेकिंग द सबनेट्स व्हिच वुड बी गिविंग अस द सबनेट आईडी। सो विदाउट सबनेट आईडी वी हैव द नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, but with the subnetting we have the subnet ID as well, which is stolen out of the host ID portion. So it's just like a multi-digit phone number। एक आप डायरेक्ट डायलिंग करते हैं, बाज़ औक़ात आप थ्रू
एक्सटेंशन भी डायल करते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसको उस तरह से किया जाता है। तो हायरार्कीज बढ़ गई हैं। यू हैव द साइट, सबनेट एंड द होस्ट। अर्लियर यू आर हैविंग द साइट एंड होस्ट ओनली। और वो कैसे पॉसिबल है, लाइक आपने नंबर डायरेक्ट भी डायल किया या आपने एक्सटेंशन भी एक लिख ली साथ। तो हम इसको देखते हैं आगे के कैसे काम करता है। तो अल्टीमेटली जो करने का तरीकाकार है वो यही है कि हम हमारे पास एक आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है। उस आईपी एड्रेस को हम डिफॉल्ट मास्क से जब एंड ऑपरेशन करते हैं विदाउट सबनेटिंग में, तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाता है। इन केस ऑफ द सबनेटिंग, we will be having a subnet mask as well, and that subnet mask will be having the number of bits more than the default mask. So here we have three more ones: 128 bit, 64 bit, in fact two more ones. So that makes an answer of 192. So all ones in the first octet, all ones in the second octet, and two ones and rest of the 6 zeros for the third octet and 0. So this is the subnet mask here. Here we will be doing the AND operation with the subnet mask. So accordingly, we will be getting IP address which won't be the network address but the subnetwork address. It is 114.1.14.64, right? Whereas class B के अंदर जो है 141.14 is the block ID, but here we are getting something else as well, which is telling me कि basically एक subnet है 64 नंबर का, आप उस पे इसको फॉरवर्ड करें। So, okay, let's do some examples and get it further clarified, and we'll go on to the case study. For example, अनम बताएगी, सवाल पढ़े। So this is the destination address जहाँ पे पैकेट को पहुँचाना है। और सबनेट मास्क हमें नहीं पता कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी डिफाइन है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सबनेट मास्क। तो अब मुझे अगर इस पैकेट को इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका ये कौन से सब नेटवर्क पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करें, ये लिख लिया आईपी एड्रेस, फिर अभी बताया था जी साबिर। प्लस माइनस नहीं होता नेटवर्क में, एंड ऑपरेशन किसके साथ, जो भी कस्टम सबनेट मास्क है उसके साथ इसका एंड ऑपरेशन कर देंगे। तो इट वुड बी 255.255.240.0, ठीक है। एंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि बिट बाय बिट मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। तो जब ऑल वंस होते हैं इस केस में, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर जो है इट इज आउट हो जाएगा, 200 और 45 ये तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 240 है, इसको कैसे लिख सकते हैं जी इमरान। ओके ठीक है, 192 हो गया। तीसरा वन हो तो कितना आंसर आ जाता है, 224, और चौथा वन हो तो 240, बाकी चार जीरो हो जाएंगे। इधर आगे में है जीरो। 34 को आप अगर एज बाइनरी नंबर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 128 जीरो हो जाएगा, 64 जीरो हो जाएगा, 32 वाली वन होगी, फिर 16 वाली जीरो होगी, 8 वाली जीरो होगी, 4 वाली जीरो होगी, 2 वाली वन होगी, और ये 56। तो जब आप स्टैंड ऑपरेशन करेंगे तो ये इससे और ये इससे, तो आपके पास ये आ जाएगा 001 और फिर 5 जीरो आ जाएंगे, डॉट जीरो। सो द आंसर इज 200.45.32.0। इसका मतलब ये है कि ये आपका सब नेटवर्क आईडी है। सो अगेन आई रिपीट, जब भी आप एंड ऑपरेशन करते हैं विद द मास्क, यू गेट द नेटवर्क आईडी और सब नेटवर्क आईडी, कि किस नेटवर्क पे फॉरवर्ड करना है या किस सब नेटवर्क पे फॉरवर्ड करना है, याद रखिए। तो डिफॉल्ट मास्क जो थे वो 3 थे, 255, फिर एक 255 फिर एक 255, ठीक है ना। अब उसके आगे चीज आ गई सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कुछ भी हो सकते हैं, राइट। और जब सबनेट मास्क से आप किसी भी आईपी एड्रेस को एंड करेंगे देन यू विल गेट दी सब नेटवर्क आईडी। जब आप डिफॉल्ट मास्क से करेंगे तो यू विल गेट दी नेटवर्क आईडी, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिए। सो वी वे अप्लाई द एंड ऑपरेशन, यहाँ पे डिटेल एंड ऑपरेशन करने के बाद सवाल सॉल्व किया हुआ एंड वी गेट दी ओके। सो इनफैक्ट हो क्या रहा है कि दिस वाज द डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास बी and this is the subnet mask. We are stealing some bits out of the host ID portion. So here we have stolen 3 bits. So by taking 3 bits, in fact, we are making possible 3 different combinations here. In fact, 8 different combinations, 2 power 3 combinations. क्योंकि 3 1 आपने ले लिए हैं तो उस वजह से यहाँ पर 8 सबनेट्स बन सकते हैं। इन 3 को चेंज करें, कभी तीनों को 0 कर लें, फिर तीनों को आप 1 तक लेके जा सकते हैं, तो 8 सबनेट्स बन जाएंगे अगर आप चेंज करें इन बिट्स को। तो 2 power 3 8 सबनेट, तो हर सबनेट के अंदर इतनी होस्ट आईडी है which are 13. So 2 power 13 host IDs are possible in each subnet if you start stealing the bits. आगे इसको फर्दर भी देखते हैं। ओके, सो CIDR नोटेशन जिसको हमने नाम दिया था इस केस के अंदर, लाइक अगर आपने ये यहाँ 8 बिट थी, यहाँ पे आपने मजीद 8 ले ली, 16 हो गई, और अगर 3 और ले लिए तो इट वुड बी 141.14.192.3/19, राइट। अगर आप 18 करते हैं तो अभी 19 है, तो इट इज इक्वल टू 255.255.224, और अगर आपने 18 लिया था तो .192, this is telling us the sub network mask. So by now we know कि whenever a number is other than 255 it's a sub network, अब तक जो है पता है, although we later see कि हर नंबर जो है सबनेट बन सकता है, but at the moment it's always a contiguous ones, मुस्तकिल 1 होते हैं, बीच में कोई 0 नहीं होते, तो यहाँ पे इस वक्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन तक हम पहुंच गए। Okay, so now let's go towards defining the subnetting operation. So custom subnetting may we have following 4 things to do. Number 1 is, first of all, we decide about the physical network. How many physical segments you want. ठीक है, ब्रांड के साथ कौन बैठा हुआ है? वक्कास। तो वक्कास बताएगा जी कि what do we mean by defining the physical network. First step ये जो है ये क्या है? This is step number 2, step number 3, step number 4. इससे क्या मुराद है? दवाइयाँ ले रहे हो ना सबसे बड़ी बड़ी, तुम तो लिखा हुआ है नीचे, तो क्या मतलब है भाई? आपके पास एक ब्लॉग था क्लास ए और बी का, अब आपने कहा यार कि मेरे तो 5 डिफरेंट दुनिया में ऑफिसेज हैं, तो मैंने 5 सब नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक है। पहला डिसाइड ये कर लिया, फिर आप सेकंड डिसीजन ये करें कि ओके जी मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन में हर सब सेटअप के अंदर मुझे 800 आईपी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो इट मींस आपने ये कहा जी कि बड़ा जो नेटवर्क मेरे पास है वो जो भी है उसके मैंने 5 हिस्से करने, और हर हिस्से के अंदर मुझे 800 आईपी चाहिए। तो ये पहला डिसीजन ये होता है, इसको हम कहते हैं डिजाइनिंग द फिजिकल नेटवर्क। हाउ मेनी फिजिकल सेगमेंट्स यू रिक्वायर आउट ऑफ द फुल नेटवर्क and how many IPs you need on that. That is your first thing to decide. Based on this, there comes the second step, which is you decide the custom subnet mask. Based on this, we go for the subnet mask, which will tell us about the subnet IDs. So there is a difference between subnet mask and subnet IDs. You will see that what difference. But based on subnet mask, we will define the subnet IDs and then the host IDs for each subnet ID. This is step number 2. Third step would be the finding out the number of subnet, total number of subnets, and the last step would be the total number of host IDs in each subnet. In fact, ये जो 2 steps लिखे हैं वो आगे डिटेल में कवर होते हैं। So first step is deciding the physical requirement. 2 is the default mask से subnet mask बनाना. Third is subnet IDs define करना. Fourth is host IDs define करना. So we'll see that shortly with a problem.
लाइक फॉर एग्जांपल हमें बिफोर दैट एक चीज और देखते हैं. Like we have been given a network address or network block 152.77.0.0. ये कौन सी क्लास है ना? क्लास बी है. कितनी होस्ट आईडीज होती है क्लास बी में? जी वकास. 16 बिट्स आप चेंज कर सकते हैं, यानी 2 पावर 16 होस्ट आईडीज होती है, which is 65,000 host IPs. In each block B, we have 65,000 people to accommodate. डिफॉल्ट मास्क क्या होता है इसका साबिर? डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास बी. हाँ जी इरफान, ये लिखा हुआ नीचे, इधर ही पढ़ ले अल्लाह के बंदे. सो क्लास बी में आईपी एड्रेस से हमें पता है, डिफॉल्ट मास्क पता होता है. ठीक है. सो द फर्स्ट टू ऑक्टेट्स आर द नेटवर्क आईडीज, द रेस्ट टू आर द होस्ट आईडीज. और द फर्स्ट टू बाइट्स आर शोइंग द नेटवर्क आईडी, द अदर टू आईडीज और द अदर टू बाइट्स आर शोइंग द होस्ट आईडी. ऐसे ही है. और भी हम थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सब नेटवर्क आईडी होती है दैट इज स्टोलन आउट ऑफ द होस्ट आईडी पोर्शन. राइट. अच्छा, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें पता नहीं चाहिए, वो क्या है जी? ऑल डिवाइसेस और होस्ट शेयर द असाइंड नेटवर्क आईडी. तो नेटवर्क आईडी जो है वो हर डिवाइसेस की सेम होगी. नंबर वन. नंबर टू, each physical segment of the network has a unique subnet ID, and the subnet ID is common to all hosts on that physical network. It will vary for the other devices on other physical segments. Each host on the network has a host ID unique to its subnet ID. ये मैं आपको थोड़ी देर में भी इसको फिजिकली भी देख लेते हैं कि इससे मुराद क्या है. बट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये एक नेटवर्क है, इसमें एक डिवाइस है इधर, दिस इज अ डिवाइस, तो इस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा. वो आईपी एड्रेस से अगर आप नेटवर्क आईडी निकालना चाहें तो वो इस साइट की आईडी होगी, वो निकल आएगी. लेकिन अगर इसके अंदर मल्टीपल सबनेट्स बने हुए हैं, जैसे एक सेगमेंट ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक फॉर एग्जांपल ये चार बने हुए हैं, तो इस ये डिवाइस जो है ऑन तो इस नेटवर्क पे तो है, जो कि इस पूरे नेटवर्क की आईडी है, लेकिन ये इस सबनेट के ऊपर है, ये इस सबनेट पे नहीं है, या इस पे नहीं है, या इस पे नहीं है. तो इस डिवाइस के लिए नेटवर्क आईडी तो कॉमन निकलेगी, लेकिन सबनेट आईडी इसकी स्पेसिफिक निकलेगी. और वो कैसे निकाली जाएगी? नेटवर्क आईडी निकाली जाएगी डिफॉल्ट मास्क से, और सबनेट आईडी निकाली जाएगी सबनेट मास्क से, कम सबनेट मास्क. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. Okay, now let's take a problem. Say you have been assigned to create an IP addressing plan for a company, such like that you have to make 5 physical segments. Each have a maximum of 5,000 nodes on segment, and you have been assigned the public network address of 152.77.0.0. अच्छा, अब यहाँ से क्या चीज पता चली है? अभी हम कर रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग की सबनेटिंग. सो वी हैव अ ब्लॉक जिसका ये ब्लॉक आईडी है, और इसमें पता ये चलता है कि इसके ऊपर जो है वो 65,000 आईपीज होंगे, ह्यूज नंबर. हमें टास्क ये किया गया है जी कि आप ये करेंगे इसके 5 सेगमेंट, फिजिकल सेगमेंट अलग अलग बना दें, और हर एक के ऊपर 5,000 होस्ट मैक्सिमम रखें आप, इससे ज़्यादा ना हो. ठीक है. सो दिस इज स्टेप नंबर 1, जो फिजिकल डेफिनेशन थी कि पहले आप अपना नेटवर्क डिफाइन कर लें. ठीक है शहबाज. ओके. सो हमने इससे पहले भी बात की कि जी बहुत सारे इश्यूज की वजह से हमें सबनेटिंग में जाना पड़ेगा. ये मैं स्लाइड छोड़ कर आ गया था. The second step was the subnetwork mask, which you have to decide based on this physical definition जो हमने define की. Okay, so network address क्या है शहबाज? डिफॉल्ट मास्क इसका क्या बनता है? ओके. सो ये हमारे पास डिफॉल्ट मास्क बाइनरी में.
अब मैंने बेस्ड ऑन दी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस अपना सबनेट मास्क डिफाइन करना है एंड आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव टू स्टील अ बिट फ्रॉम द होस्ट आईडी पोर्शन। आई टुक वन बिट। जब एक बिट लिया आपने तो ये बिट कभी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मास्क में तो ये 1 होगी, लेकिन अदरवाइज एक बिट आपने जब ले लिया तो उस बिट को आप 0 या 1 रख सकते हैं। आई कैन मेक, मैं यहाँ पे दो लास्ट ऑक्टेट डिफाइन कर रहा हूँ। This one shows that my this number in decimal would become 128. ऐसे ही है। And based on this one bit, it means I can make 2 power 1 subnets. It means 2 subnets are possible. और इस एक बिट को छोड़ के बाकी जितनी बिट्स हैं वो मुझे अवेलेबल है फॉर द होस्ट. It means 2 power 15 bits are available for the host IDs. So this gives an answer of about 32,000 host IPs. There is an RFC which states RFC 1812 के नाम से which states कि जी आपके पास फर्स्ट आईपी एड्रेस और लास्ट आईपी एड्रेस आप किसी डिवाइस को नहीं दे सकते, उसको स्पेशली रिजर्व रखा जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस टू इज सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट कि कितने होस्ट आईडीज अवेलेबल होंगे. At the moment all devices are RFC 1812 compliant, so we can just safely assume कि चीज नहीं है and the whole numbers are available to us. 32,000 IPs can be given. लेकिन ये मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करता है? नहीं करता, क्योंकि मुझे इस पे दो सेगमेंट्स बन रहे हैं मेरे और हर सेगमेंट में 32,000 IPs हैं. फायदा तो ना हुआ. मुझे चाहिए कितने? तो इट मीन I'll go and I'll steal the another bit as well. So अब मैं 2 बिट्स लेता हूँ. अगर 2 बिट्स लेता हूँ तो इसका मतलब है 2 power 2 4 सब नेटवर्क्स कैन बी मेड और जो मास्क की वैल्यू है वो 128 प्लस 64 इज 192 और होस्ट आईडीज अवेलेबल है 16,000. क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? So I should move forward. I should get the third bit. Once I get the third bit, the decimal equivalent of 3 bits is 224. Remember the first two octets are 255, 255 for the default mask. वो वही है. तो ये 224 जो है सबनेट मास्क डिफाइन हो रहा है, लेकिन 3 बिट्स चोरी कर ली है और 3 की जगह 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. It means you have 8 subnet IDs which are possible. And in each subnet you can make use of 2 power 8 plus 5, 30, which gives you an answer of 8,000 IPs, around 8,000 IPs. क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है? मुझे मिनिमम 5 चाहिए थे तो 5 से तो ज़्यादा है और हर एक के ऊपर 8,000 IPs है, पूरा कर रहा है. लेकिन वील मूव फॉरवर्ड एंड सी कि इसके बाद अगर मैं एक और बिट लेता हूँ तो इससे क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है. तो लेट मी आस्क समबडी. जी वकास, क्या होगा अगर मैं एक और आईपी एक और बिट ले लेता हूँ? इधर क्या फर्क पड़ेगा? हम कहते हैं जी मैंने एक और बिट ले लिया. ये मैंने कस्टम सबनेट डिफाइन कर लिया. सो व्हाट वुड बी दी सबनेटवर्क मास्क? It would be 240. How many subnet IDs are possible? How many subnets are possible? इससे पूछो वो बताए. 16 आ गया. शहबाज, इधर क्या नंबर आएगा? टू पावर क्या होगी? जी वकास, आप में से सिगरेट कौन पीता है? यहाँ तक मुझे खुशबू आ रही है किसी की. कोई somebody is a chain smoker. Who is he? कोई है? कौन है? हाथ खड़ा करे. नोबडी? श्योर? कोई भी नहीं है? सब सिगरेट नहीं पीता? आप नहीं पीते? जी वो कभी कभार.
आज इरफान कभी कभार नहीं। अभी किसने पी है थोड़ी देर पहले? बाकियों को भी आ रही है? मुझे तो आ रही है। चले। तो यार ये 2 पावर क्या है, 8 जगह 4 12 हो गया ना? या इसका आधा हो जाएगा ना, 4000 के करीब हो जाएगा, तकरीबन 4000 समथिंग। 2 पावर 12 निकाल ले जो भी बनता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर लिखना चाहूँ तो ये एग्जैक्ट नंबर 4096। अच्छा, अब अगर देखो भाई जी, आप मेरी ये वो रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है, मुझे 5 से ज़्यादा सबनेट आईडीज दे रहा है, लेकिन हर सबनेट पे मैक्सिमम आईपीज अवेलेबल है 4096, 5000 से कम हो गए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? 5 फिजिकल सेगमेंट्स हर एक के ऊपर 5-5 हजार आईपीज। 5 subnet IDs with a max of 5000। मैक्स ठीक नहीं है, मैक्स ही वैसे कम भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, तो मेन करना चाहिए। चलो ठीक है, मेन कर लो। However, this is all changed. If I move forward, I take another bit. तो उस केस में मेरी सबनेट आईडी हो जाएगी 248। This is not only 248, this is 255.255.248.0 because I am considering the last two octets on it. But this 248 will allow me to make 32 subnets, and each subnet will be giving me 2046, 2048 IPs. Again रिक्वायरमेंट और कम हो गई, या मेरी रिक्वायरमेंट से और आईपीस कम हो गए। 5000 मुझे मिनिमम चाहिए, उससे बड़े हो सकते हैं। एक और ले लिया मैंने, तो अब ये नंबर चेंज हो गया, 252 आ गया इधर, सबनेट आईडीज आ गया 64, IPs on each subnet are reduced, it are 1024 now. I can move forward further, 7 लूंगा तो ये 254 पे आ जाएगा, 128 सबनेट्स बन जाएंगे और हर सबनेट पे 512 आईपीज अवेलेबल होंगे। और अगर से मैं कंप्लीट ऑक्टेट ले लेता हूँ तो ये अब सबनेट आईडी बन गई 255.255.255 और उसके ऊपर जो सबनेट आईडीज पॉसिबल है वो 256 आईडीज बन सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज नंबर्स कैन वेरी जो यहाँ मेंशन्ड है। All of them can be 0 to all of them can be 1s. So there would be 256 subnet IDs और हर एक सबनेट के ऊपर 256 होस्ट आईडीज होंगे। ठीक है, थक गए वकास? लग रहा है ब्रेक करनी तो ब्रेक कर ले, पानी शानी पिया है? हाँ पिया है, 5 मिनट की ब्रेक कर लो, आगे चलो, फ्रेश अप हो जाओ जी। 5 बजे हम ऐसा करेंगे ना कि थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे, आप नमाज पढ़ के और बस इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। नमाज का टाइम तो आजकल 6 बजे तक है, पौने 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 7 आजकल मगरिब हो रही है। मर्जी है आपकी, जैसे आप मैं इतना शौकीन नहीं हूँ असल में चाय पीने का। चलिए ओके, let's finish it off what we started. So from these couple of slides, it's quite clear that we can decide for a particular subnet mask based on which we can comment on the available subnet IDs as well as the host in each subnet IDs. Right. So this whole breakdown is quite understandable. And if we move from here onwards, so it means the based on whatever requirement we started off from,
this is the right source or the most appropriate choice for the subnetwork mask, which will give us the required number of subnet IDs and the host IDs in each subnetwork. Our requirement was to create 5 physical segments, each with 5,000 host IDs. So from the available mathematical work, the obvious choice is 255.255.224.0. This will be the required or the selected subnetwork mask, right? This will give me or give us 8 different subnet IDs, right? We'll see that now. So now first step is done. The physical decision has been made, based on which we have come up with the second step, which is the custom subnet mask. So now after this, the third one is to decide about the subnetwork IDs. How many subnetwork IDs we need? In our case, we need 5 subnetwork IDs. Available are 8. So we need to decide on that. But solution for up till now is, this is my subnetwork mask. It gives me 8 subnetworks and further around 8,000 host IDs. So if we move forward from here, okay, that was a case for a class B network. Based on the similar working, we can decide for class A network, right? Like we have a network address 52.0.0.0. It means 16.7 million host IDs are available to me, and I can start making or start stealing the bits from the host ID portion, which is in this case is the second byte or second octet, right? So if I take the first bit, the subnet mask is 255.128. It gives me 2 subnets, and each subnet gives me around 8.3 million host IDs, right? If I take another bit, this gives me subnet mask as 255.192. And the subnetwork IDs in this case are 2 power 2, which are 4, and the host IDs reduces by a figure of 2, which is 4 million host IDs in each subnetwork. शहबाज, ये 224 कैसे आया? सही बंदा पकड़ता हूँ ना मैं. जी अनम, 224 कैसे आया? पहले तो ये बताएं कि ये 224 क्या चीज़ है. सबनेट मास्क में तो 4 बाइट्स होती हैं, तो एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा? मास्क की वैल्यूज क्या होंगी? इधर मुझे फिल कराएं इधर. हाँ जी वकास. क्लास सी कैसे हो गया मेरे भाई? बात शुरू की थी हमने क्लास ए से, सी तो है ही नहीं. हाँ जी आपने 255.224.0.0. ये कस्टम सबनेट मास्क होगा, क्योंकि पहला तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे ना. जो पहला बाइट है वो तो पहला तो है ही ऑल वंस. हम तो अगले में से अब एक एक करके 1 लेके देख रहे हैं कि क्या सबनेट मास्क बनता है. जब 1 लिया तो 128 हो गया, 2 लिया तो 1292 हो गया, 3 लिया तो 224 हो गया. Because we need to add 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 128 में 64 जमा करेंगे 192 हो जाएगा. फर्दर 32 ऐड करेंगे 224 हो जाएगा. फर्दर 16 ऐड करेंगे 240 हो जाएगा. प्लस 8 248, 252, 254, 255. 255 is the maximum number which we can get if all the bits are 1.
ठीक है ना? यस और नो? इसका मतलब ये है आपको नंबर सिस्टम आपने नहीं पढ़ा हुआ शायद। ये वन वन अगर बिट सारी वन हो जाए इधर इन 8 लोकेशंस पे, तो इनको आप कन्वर्ट करते हैं जब डेसिमल में, तो ये आंसर 255 बन जाता है। किस तरह से कि ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 0 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 2 से, अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 7 से। तो ऐड करेंगे तो आंसर 255 आ जाएगा। तो ये जो बिट्स हैं ये बता रही है कि किसको आपने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। बाकी सारी जीरो है, सिर्फ ये लास्ट लोकेशन दैट मींस 2 पावर 7 में प्लस हो जाएगा 2 पावर 6 जो कि बराबर है 128 जमा 64 के, इसलिए आंसर आ गया है 192। कन्वर्जन की भी है ये, ठीक है? नो? आपका बैकग्राउंड क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या सीएस का? ये नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हुए आप? आती भी नहीं ना क्लास में, आज मेरे ख्याल में 3-4 क्लासेस के बाद आई आज। तो जब पिछली चीजें नहीं पढ़ेंगी तो अगली चीजें कवर नहीं होंगी, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? सो इज इट क्लियर सैफुल्लाह, आपको क्लियर? और नाउ वी कैन, जब ये चीज नंबर क्लियर हो जाए तो इधर हम देखते हैं बेसिकली इस एक बिट को, अगर एक बिट को आपने लिया है तो 2 पावर 1 है, 2 लिया है तो 2 पावर 2 है। एंड वील सी शॉर्टली कि वो कैसे बिट्स जो है वो यूज हो रही है इनटू दी सब नेटवर्क आईडीज। बट number of subnet IDs can be determined by making the number of ones in the mask to the power of 2. So that will give us the number of subnet mask. बाकी जो IDs है या बाकी जो बिट्स हैं वो होस्ट IDs के लिए यूज करते हैं, तो वो आगे 2 की पावर बाकी जो बच जाती है वो इधर आ जाती है। अकॉर्डिंगली हम किसी भी एक नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं टू इट्स कस्टम सबनेट मास्क एंड लेटर ऑन द अदर थिंग्स। तो दिस वाज द क्लास ए। सिमिलरली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग क्लास सी के भी सब नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं, बनाते नहीं है लेकिन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ छोटा नेटवर्क हो जो कि 256 को भी फर्दर डिवाइड करना चाह रहा हो, तो उस केस में अगर 205.123.88.0 एक नेटवर्क एड्रेस है तो ये क्लास सी नेटवर्क है। इसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स वुड बी डिफॉल्ट मास्क के होंगे, तो 255.255.255.0 इज द default mask for class C network. If you want to make sub networks out of it, then you will start stealing the host ID bits. तो आप आखिरी को डील करेंगे, सिर्फ एक को लेंगे तो 128 नंबर बनता है, यानी कस्टम सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। एक बिट को यूज किया तो 2 पावर 1 is 2, 2 सबनेट्स बन सकते हैं और हर सबनेट पे 128 होस्ट आईडीज होंगी, क्योंकि बाकी 7 बिट्स आप यूज कर सकेंगे फॉर दी होस्ट्स। इन दी सिमिलर वे अदर कैन बी वर्कड आउट। आई होप कर सकते हैं, ठीक है? साबिर ये क्या चीज है? तो इसका कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा? फिर बंदा पकड़ लिया सही पहले, क्या होगा? अभी तो बताया है, तुम सो रहे हो, इसका मतलब है क्या 248? पूरा बताओ ना। डॉट लास्ट, तो ये आखिरी जो नंबर है वो 248 होगा। तो चूंकि आपने इसमें 5 बिट्स यूज कर ली हैं फॉर दी सबनेट्स, तो 2 पावर 5 इज 32 सबनेट्स होंगे, और बाकी 3 आप यूज कर रहे हैं फॉर होस्ट आईडीज, तो वो 2 पावर 3 इज 8 होस्ट आईडीज है हर सबनेट के ऊपर। तो दिस इज हाउ वी कैन create the subnetwork mask, and next step is now to create the subnetwork IDs। अब किस सबनेट को क्या आईडी देनी है? जिस तरह नेटवर्क की आईडी थी ना, एक नेटवर्क आईडी है ना 205.123.88, ये नेटवर्क आईडी है। अब इसके अंदर फर्दर अब जितने भी सब नेटवर्क्स बनाने हैं उनकी अलग अलग आईडी होगी, ठीक है सफुल्ला? अब वो क्या होगी वो देखते हैं। तो ये अब यहाँ पे सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है कि जी इनफैक्ट वी हैव अ क्लास ए, सो ये नेटवर्क एड्रेस है, ये उसका डिफॉल्ट मास्क है, तो ये उसका एक कस्टम सबनेट मास्क हो सकता है जो ये बता रहा है कि इसमें आप इसकी 4 लोकेशंस पे 4 के 5
128 plus 64 192 plus 32 is 224 plus 16 is 240 plus, तो 5 लोकेशंस आप यूज कर रहे हैं, यानी 2 पावर 5 सबनेट्स बना रहे हैं, 32 सबनेट्स बनाना चाह रहे हैं, और हर एक के ऊपर 2 पावर 5 यूज कर लिए, 3 जमा 16 2 पावर 19 होस्ट आईडीज होंगी। ठीक है। सिमिलरली क्लास बी जो है 152.77 ये उसका डिफॉल्ट मास्क है, और ये आगे अगर बिट्स हैं तो वो उसकी कस्टम सबनेट मास्क को शो कर रही है, और इस तरह से यहाँ पे भी कस्टम सबनेट मास्क बन सकता है। तो कस्टम मास्क में हमेशा बिट्स ज्यादा होंगी डिफॉल्ट मास्क से। ठीक है। ओके। अब कुछ रूल्स जो सबनेट मास्क के होते हैं वो ये कि दे हैज टू बी कंटीन्यूअस मास्क, दिस इज ओके बट दिस इज नॉट ओके, cannot be zeros with ones, it has to be all contiguous ones, right? तो सबनेट मास्क को हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्लैश ऑपरेशन करके, लाइक 152.77.32.0/20 is showing that there is some networking has been done because 152.77 is the block ID of a class B address. It should have been ideally speaking /16 as the network address, as the IP address. But if 20 has been written, it means के 4 और बिट्स जो है वो यूज की गई हैं फॉर क्रिएटिंग दी सबनेट्स। So we can comment on the subnetworking by looking at the slash operation. So /20 means number of 1 bits in the subnetwork mask are 4 extra. So 2 power 4 subnets have been created, 16 subnets इसके अंदर बने हुए। ठीक है। और ये IP जो है ये उसमें से किसी एक सबनेट के ऊपर है। क्यों है? 20 इसलिए हुए क्योंकि जो डिजाइनर था उसको ये बताया गया था कि जी आपके पास IP एट ब्लॉक जो है वो ब्लॉक B का है, लेकिन आपने उसके अंदर सबनेट्स बनाने हैं 16 या 14 या 12 या 13, अकॉर्डिंगली उसने उतनी बिट्स यूज कर ली हैं, और हर एक सबनेट के ऊपर इतने IPs अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिसीजन हो रहा है। यहां तक ये ऑल जीरोस थे आपके पास, आप चाहते थे इसको एक जगह पे, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है एक जगह पे सारे IPs यूज कर लेते, नहीं पॉसिबल। आप एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके दुनिया भर में 16 ऑफिसेज हैं, आप हर एक को कुछ ना कुछ IPs देना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब वो IPs कैसे देंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। ओके। तो मैंने कहा था कि -2 का जो कॉन्सेप्ट था वो एक RFC है, RFC 1812। At the moment all the hardware is compliant with RFC 1812, so there is no requirement of doing the -2 at any place, neither in the subnetworks nor in the number of IPs. Coming on to the third step, we now going to create the subnetwork IDs. We did the physical division, later on we went on to the subnetwork mask, and now we will see how subnet IDs are defined. So for that, this was the IP address or IP block, this was the default mask. Based on our requirement we selected this subnet mask 224, ऐसे ही। So this 224 tells me कि my subnetwork mask is 255.255.224.0, ये मेरा मास्क है, और चूंकि मैं 3 बिट्स यूज कर रहा हूं तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, और जो बाकी बिट्स बच गई हैं वो 2 पावर 13 है, दिस इज इक्वल टू 8192। तो इतने होस्ट आईडीज हैं हर IP के ऊपर। ओके। So now let's move towards the creation of subnetwork IDs. So जैसा मैंने कहा कि हमने 3 बिट्स यूज किए हैं by the 224, so I can go from all 3 zeros to all 3 ones. I am talking of the last 2, ये दो तो फिक्स हैं, ये तो आपको पता है कि हमारा जो नेटवर्क ID है वो सेम होगी for all the subnetworks. So the things which we can vary is the thing from the third byte onward. So we have all 3 zeros. If this all 3 zeros are used for the network subnetwork ID, then the subnetwork ID would be 152.77.0.0, क्योंकि पहली 2 बिट्स तो फिक्स हैं, बाइट्स फिक्स हैं, अगले बाइट्स चेंज हो रही हैं, बिट्स चेंज हो रही हैं। नाउ इफ आई चेंज इट टू 1, पहली बिट को 1 करते हैं तो नंबर विच इज हियर 128 खत्म है, 64 नहीं है, 32 है, तो माय सबनेटवर्क ID is 152.77.32.0. नाउ इफ आई चेंज द नंबर, कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, 1 इधर ले आए तो 64 आ गया, फिर आपने एक 1 ऐड कर दिया, 96 आ गया। अल्टीमेटली आप इन नंबर को चेंज करते चले जाए तो आप देखें इधर जो है मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट बनने शुरू हो जाएंगे। 32 टाइम्स 2 64,
टाइम 3 96, टाइम 4 128, टाइम 5 160, टाइम 7 192, टाइम 8 224. Right? They are multiple of the first non-zero number. Right? So all zero से all ones तक चले जाएंगे तो ये आपके पास जो है ये सारी की सारी can be given as the sub network IDs. ठीक है 8 की. Now if I show you the ones which we did from here, उसमें अगर आप देखें जाके यहाँ पे ये देखें 14114.0.0 जो पहली आईडी यहाँ पे इसने दी है वो इसने सेम देती है 0.0 देती है. अगली इसने 64 दी है. रीजन बीइंग ये है कि इसके पास यहाँ पे अब 4 सबनेट्स बन रहे हैं, 8 नहीं बन रहे. जब 4 बन रहे होते हैं तो आप 141.14.0.0 इसका जो डिफॉल्ट मास्क है वो 255.255.0.0 है. आपने बिट्स इधर से निकालनी है, 2 बिट्स ले लिए आपने 255.255.2 बिट्स और लिए आपने तो 128 प्लस 64 192.0 आपका कस्टम सबनेट मास्क हो गया. 2 लोकेशन चेंज हुई हैं. अगर मैं पहली 2 को एज इट इज छोड़ दूं, अगले 2 में अगर मैं इसमें 0 कर दूं और बाकी 6 बिट्स भी 0 हैं और इसके अगले केस में पहली 0 अगली 1 हो जाती है, फिर सारे 0 हैं 3 4 5 6 और आखिरी तो 0 ही है तो ये नंबर बन जाता है 64. तो ये है 141.14.64. यहाँ नजर आ रहा है आपको ये रहा. अब अगर मैं 01 की जगह 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा 128 आ जाएगा. ये 128 नजर आ रहा है और जब दोनों को 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा 192. तो ये भी नजर आ रहा है. लास्ट वाला मैंने कहा जो RFC अवनेट 1 2 थी, जब तक वो हार्डवेयर पे थी वो ये कहती थी कि पहला भी नंबर यूज ना करो आखिरी भी ना यूज करो. वो बेसिकली यूज करते थे फॉर द पर्पस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. सारे सबनेट्स को अगर एक पैकेट भेजना है ना तो आप वो आखिरी एड्रेस यूज कर लेंगे और एड्रेसेस को अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो बूट सर्वर के थ्रू आप किसी का IP एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप फर्स्ट वाला यूज करें. तो वो अभी खत्म हो गया वो चक्कर. अभी एवरीथिंग कैन बी यूज्ड. So now all the IPs can be given, all the default IDs can be given, दोनों दिए जा सकते हैं. तो अब ये केस जो है इसमें वो वाला केस अभी नहीं है, उसको अगर आप अवॉइड कर दें consider it is done. So we are again here, यहाँ पे आ गए. So based on this, these are the various available subnetwork IDs. So once subnetwork IDs are given to any subnetwork, it cannot be given to any system. It is for the subnet. इस तरह से first network address नहीं दे सकते, इस तरह से आप subnetwork नहीं दे सकते. लेकिन इसकी वजह से आप एक अलग राउटर के थ्रू इस सेगमेंट को अलग कर सकते हैं. ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, किसी और कंट्री में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, किसी और शहर में बनाया जा सकता है. प्रॉब्लम द ओनली थिंग विच हैज टू बी कन्फिगर्ड इज जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफॉल्ट राउटर है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि जी ये एड्रेस मेरे फला राउटर पे पैकेट आपने फेंक देना है, क्योंकि इंटरनल उसका डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज पॉसिबल. आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन डजंट नो कि आपने इंटरनल को इस तरह की एडजस्टमेंट की हुई है. खत्म हो गया. हाँ खत्म कर दिया. बिल्कुल ऐसे ही है. इसके लिए एक RFC पब्लिश हुई 1812 जो मैंने लिखा है और सारे इक्विपमेंट को उन्होंने कंप्लाइंट कर दिया कि जी इसको आप फॉलो करें. सो नाउ यू कैन यूज ऑल द IPs, ऑल द IDs बोथ. कर सकते हैं बिल्कुल. तो काट देता हूँ. इट इज वैलिड. ये भी पहला नहीं पढ़ा था शायद, मैंने इनवैलिड लिखा हुआ, लेकिन वो इसलिए कि जब तक ये RFC कंप्लाइंट नहीं थे तो पहले और आखिरी को यूज नहीं करते थे, अब यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली नाउ दीज आर दी वेरियस IDs अवेलेबल टू अस. अच्छा अब देखिए, अब ये तो हो गया थर्ड स्टेप. अकॉर्डिंगली अब मैं किसी और को देख लेता हूँ. 2 to 4 को देखते हैं तो 3 है आपके पास. ऑल जीरो से लेके ऑल वंस तक जा सकते हैं. तो देखिए 001 लेंगे तो ID आ जाएगी 152.77.32.
और फिर उसके मल्टीपल्स आने शुरू हो जाएंगे। आप चेंज करते जाएं, बाइनरी में भी देखें और उसको कन्वर्ट करके देख लें, तो आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास 240 आ गया तो 4 है, तो फर्स्ट से लेके आखिरी तक सारे वेरी कर सकते हैं। तो 16 है, ये 1 to 8 है, 64 है, 32 है, 16 है, तो 16 और बाकी उसके मल्टीपल है 16 टाइम्स 2, 16 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6। क्योंकि 2 पावर 4 है, इट मींस 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 सबनेट्स यहाँ बन सकते हैं। शो सिर्फ 4 किए हुए फॉर एग्जांपल। बाकी आगे जाओगे तो अगला क्या होगा, 152.77.16 टाइम्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल .80.0। अगले पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, और ये किसके मल्टीपल है, 16 के मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बहरहाल दिस इज द इजीएस्ट कि आप राइट मोस्ट बिट को 1 करें, जो भी नंबर आए बाकी उसके मल्टीपल है, इट्स द इजीएस्ट वन। तो आप या इधर आप चेंज करके देखते जाएं, फिर मुश्किल तरीका या जो भी और तरीका आप सोचते हो, तो बहरहाल दिस इज हाउ इट इज डन अकॉर्डिंगली based on any IP address and its any IP block and its custom subnet mask, we can decide on to the subnetwork IDs। ठीक है, लाइक अगर आपसे ये यूज करते हैं और आप इस सबनेट मास्क को यूज करें, इट मींस आप 256 सबनेट मास्क बना रहे हैं, तो 1.2.3 से लेके चलना शुरू कर देंगे, आप आगे चले जाए। अकॉर्डिंगली ये थर्ड स्टेप डन हो गया हमारे पास। तो अभी हमारे केस के अंदर अभी हमने चूंकि क्या करना था, हमने 5 बनाने थे सबनेट, तो बेस्ड ऑन आवर कस्टम सबनेट दिस मे बी आवर फर्स्ट सबनेट आईडी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 सबनेट आईडीज बन गई। बाकी अवेलेबल है मुझे फॉर एनी फ्यूचर एक्सपेंशंस। आई कैन डिसाइड 152.77.192 वाला जो फंक्शन है वो आगे ले जाएंगे हम, फिर एक 224 वाला है वो उसके बाद ले जाएंगे, वो अवेलेबल है मेरे पास, किसी और जगह पे मैं प्लग इन कर सकता हूँ एनी टाइम इन फ्यूचर। बट फॉर द टाइम बीइंग आई कैन यूज दीज 5 व्हिच आर द फर्स्ट 5 फॉर 5 सब नेटवर्क्स। अब इन 5 सब नेटवर्क्स के अंदर there are 2 power 13 8000 host IDs। fourth step is to go and compute those host IDs। this is the fourth step। तो देखें क्या चीज है, अब ये मेरा कस्टम सबनेट मास्क है 255.255.224। 224 को मैं 111 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास जो फर्स्ट आईडी है वो मेरी सबनेट आईडी है विच इज 152.77.32, जिसको लिख सकते हैं 001। ठीक है, इधर लिखी हुई भी है। यहां से लेकर जो सेकंड सबनेट आईडी है वो ये थी 152.77.64.0। इसका मतलब ये है कि 32.0 के बाद जो फर्स्ट आईपी है वो क्या है, 32.1 है, नेक्स्ट 32.2 है। जब ये 255 यहाँ पूरा हो जाएगा 33 आ जाएगा, और चलते 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 मैं 63 तक पहुंच जाता हूँ, 63.254। नेक्स्ट वुड बी 63.255 और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 64.0। तरतीब में चल रहे हैं ना। तो फर्स्ट आईपी इन द फर्स्ट सबनेट वुड बी 152.77.32.1 and the last IP would be 152.77.63.255। वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, इसलिए लिखी भी नहीं है, 254 लिख भी सकते हैं, वो लास्ट आईडी है। दैट मींस के आई हैव, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने वाला पॉइंट है कि देखें यहाँ पे इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। ये रिप्रेजेंटेशन है 152.77.32.0 की। इसके अंदर जाके देखें आप तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो 001 है। इसमें ऐड कर रहे हैं इस 1 को, क्योंकि इधर तो और कोई चीज ऐड ही नहीं हो रही। इस बाइट में थर्ड बाइट में तो और कोई चीज नहीं है, वो तो वही रहेगी। यहाँ पे 1 आया। नेक्स्ट में आप जाते हैं तो अगेन ये बाइट्स यहाँ की यही है, इधर चेंज हो गया दोबारा। अब से मैं लास्ट पे 63 पे चला जाता हूँ। 63 के लिए क्या होगा, ये 3 फिर वही रहेंगे, ठीक है। क्या होगा 32 प्लस बाकी ऐड करोगे तो 63 आंसर आएगा, और यहाँ पे बाकी चेंजेस आ रही हैं जो भी आ रही हैं। अब देखें ये नंबर है मेरे पास, ये आईपी एड्रेस था जिसपे पैकेट ले जाना था। मैं इसको क्या करूंगा, पहले मेरा जो शुरू वाले राउटर्स हैं वो इसको
एंड ऑपरेशन करेंगे विद द डिफॉल्ट मास्क, वो क्या है 255.255, आंसर आएगा 152.77.0.0। ये साइट आईडी है, तो वो पहुंचता जाएगा आखिरकार आपके गेटवे पे आ जाएगा। गेटवे को पता है जी कि मेरे अंदर जो है वो 8 सबनेट्स बने हुए हैं, और हर एक की, और मेरा जो कस्टम सबनेट मास्क है वो है 255.255.224। तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस को जो ये लिखा हुआ है 152, इसी को देखेगा तो इसी को ना, कि ये आ गया मेरे पास 63.254 एक सिस्टम पे है, वो इसको एंड करेगा 255.255.224.0 के साथ, ना कि 255.0.0 के साथ, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास फर्दर सबनेटिंग हुई थी इस सबनेट मास्क के तहत। तो जब इस ऑपरेशन को करेगा तो आंसर क्या आएगा जी, करें। हाँ, कस्टम सबनेट, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटर राउटर को पता है कि जी मेरी अंदर सबनेटिंग हुई हुई है और ये मेरा कस्टम सबनेट मास्क है। जो इससे पिछले वाले राउटर्स थे उनको इस कस्टम सबनेट मास्क का नहीं पता था, उनको डिफॉल्ट मास्क का पता था, तो वो फॉरवर्ड करते 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 यहाँ तक ले आए। लेकिन इसको पता है कि आगे ये मेरे पास 8 सब नेटवर्क्स बने हुए हैं, और मैंने अब इसको करेक्ट नेटवर्क पे फॉरवर्ड करना है, करेक्ट सबनेट पे फॉरवर्ड करना है, तो मुझे सबसे पहले निकालनी सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी के लिए वो कस्टम सबनेट से इसको एंड करेगा। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, यहाँ तो जवाब वही आएगा 152.77। इधर क्या जवाब आना चाहिए, ये आईडी मिलनी चाहिए उसको, यही आएगी, क्योंकि देखिए पहले 3 नंबर जो है वो सेम है, यहाँ पे सेम है, और जो इसका डिफॉल्ट मास्क है उसमें इधर 3 वंस होते हैं, बाकी जीरोज होते हैं सारे, तो बाकी सबको वो खत्म कर देगा, ये आंसर निकाल देगा जो कि बराबर है 32.0 के। तो यहाँ जवाब आएगा 32.0। इट मीन उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा जी कि ये इस सब नेटवर्क के ऊपर ये आईपी एड्रेस रिजाइड कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उस राउटर के ऊपर इसको आप फेंक दें। अगर हम आगे जाएं सेकंड सबनेट के ऊपर, तो देखें उधर अब बिट्स चेंज हो गई हैं, लेकिन सब में ये 3 बिट सेम है। उसका पहला आईपी होगा 152.77.64.1, आखिरी होगा 152.77.95.255, क्योंकि अगला जो है 96.0 जो थर्ड आईपी शुरू हो रहा है, थर्ड आईडी आ जाती है वहां पे, ये लिखी हुई है, इससे पहले पहले तक आईपी इधर होंगे। इन सारे आईपीज पे जो कस्टम आईडी है वो सेम है, राइट। सो इन दिस वे this fourth step is completed. You know the IPs, you know the custom subnet ID, you know the network ID, and now things are done, और routing और forwarding का जो phenomena है वो इसके तहत पूरा होता है, everything is done, ठीक है। अब आप कोई भी डिफरेंट ले सकते हैं, लाइक अब ये सबनेट आईडीज अगर है 0, 32, 64, तो इसका पहला आईडी क्या बनता है 0.1 और आखिरी बनता है 31.255, क्योंकि नेक्स्ट 32.0 जो है वो अगला सबनेट शुरू हो रहा है, उसके अपने आईपी 32.1 से लेके 63.255 तक होंगे, क्योंकि 64.0 पे तीसरा आईडी है, वो चौथा 96 पे अगर है तो इसके फर्स्ट होगा 64.1 और आखिरी होगा 95.255, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप होस्ट आईडीज डिफाइन कर देंगे। किसी और को ले लीजिए, वहां भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.8 अगर है तो इसका 0.0.1 से लेके 7.255.25 तक, क्योंकि इसके नेक्स्ट आ जाता है 8.0.0, अगली आईडी है, तो उसके अपने आईपीज .1 से लेके .255 तक होंगे, क्योंकि 16 से ये शुरू हो रहा है तो 15.255.255, क्योंकि इसका नेक्स्ट आईपी अगले आईडी में चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। इसकी एक दफा प्रैक्टिस कीजिए इन सारों के साथ, राइट। लाइक इधर एक समरी बनाई हुई है कि ये वो 5 सबनेट्स थे, और हर सबनेट के अंदर आपने आईपीज डिफाइन कर दिए बेस्ड ऑन के 32.0 अगर मेरा पहला है और उसका अगला 64 है, तो इसके दरमियान 32.1 से लेके 63.255 तक की आईपीज हैं, जो कि इतनी आईपीज हैं ये अवेलेबल है इस सब नेटवर्क के अंदर। तो ये आप दे देंगे कराची वाले को, ये दे देंगे आप ऑस्ट्रेलिया वाले को, ये दे देंगे आप कनाडा वाले को, ये दे देंगे आप यूएसए वाले को, ये दे देंगे आप यूरोप में जर्मनी वाले को, वो यूज कर लेगा। और आपका डिफॉल्ट राउटर को पता है कि जी ये मैंने इस आईडी के लिए फेंकने हैं, ये इस आईडी पे फेंकने हैं, ये इस आईडी पे फेंकने हैं, इस आईडी पे फेंकने हैं, वो आपकी इंटरनल एडजस्टमेंट होगी। और बाकी जो इसके अलावा अनयूज्ड है वो आप अलग से रख लें अपने पास, इन फ्यूचर यू कैन यूज इट एनीवेयर whenever you want to plug in another sub network
to your system, right? I think we keep it at this point. We move forward from here in the next class. इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे, आपके डाउट्स कोई होंगे वो करके फिर आगे चलेंगे। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो और अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वकास जो चाह रहा है कि इधर एक स्प्रिंग होता और मैं तो जंप मारता और छत तोड़ के निकल जाता हूँ। क्या लिखा है डायरेक्ट? ये क्यों लिखी है? देखो ये डिसाइड करेगी, ये लिखी है बेस्ड ऑन दिस, जो अगले सबनेट की आईडी है 8.0.0 है ना, तो ये इससे पिछला जो लास्ट आईपी हो सकता है वो क्या 7.255.25 में हो सकता है जो ये लिखा हुआ है, इसलिए ठीक है। इस तरह देखो ये 15 क्यों है, क्योंकि इसकी अगली 16 है, उससे पहले पहले के आईपीज यहाँ यूज होने चाहिए। और क्योंकि इन सारे आईपीज का जो जब आप कस्टम सबनेट से इसको एंड करेंगे तो ये इसका आईडी निकलेगा हमेशा, ठीक है। इन सब के लिए आप सबको करके देख लें इंडिविजुअली, जब आप कस्टम सबनेट से निकालोगे उनका सबनेट आईडी तो हमेशा ये निकलेगा 33.8.0.0, ठीक है, इसलिए ये है। सबनेट मास्क के बगैर ये काम नहीं चल सकता ना, कैसे पता चलेगा? सबनेट मास्क जो है वो राउटर्स के ऊपर मेंटेन होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि करेक्टली फॉरवर्डिंग कर सके आप पैकेट्स। पैकेट में तो सिर्फ आईपी एड्रेस लगा होगा, लेकिन वो आईपी एड्रेस किधर है दुनिया में, उसके लिए एक सिंप्लीफाइड तरीका होना चाहिए। वो तरीका ये है कि राउटर्स के बाद एक मैथमेटिकल ब्रेन होना चाहिए कि किस तरह से मैं ये डिटरमिन करूं कि यार इस पैकेट को मैंने आगे किधर फॉरवर्ड करना है। हाँ ठीक है ना, लेकिन जब वो फाइनली उस राउटर पे पहुंचेगा जहां पे उसको पहुंच जाना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का राउटर है, उस राउटर के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, आप बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपने वहां बताया होगा यार कि मेरा कस्टम सबनेट मास्क भी एक है, अगर पैकेट आए तो अब आप कस्टम सबनेट मास्क के थ्रू गुजारें। दैट इज अ मशीन, यू आर द ऑर्गेनाइजर। कभी वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, हमेशा देयर इज समबडी हु इज देयर टू कंट्रोल द इक्विपमेंट। यू विल बी वन हु विल बी टेलिंग द हार्डवेयर के यार अब इसको यूं करो। अब जब हम जाएंगे ना फॉरवर्डिंग राउटिंग के ऊपर तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी। और अब इसकी एक दफा आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई करने में कोई इशू आता है तो डू लेट मी नो। ओके जी, सो